Okay. Yeah. Ritu, Saurabh, are we ready? Yeah, just a minute. So, everyone, Ritu and Saurabh are in conversation on yoga. They shall be talking about the philosophy behind yoga. I'd like to emphasize the words philosophy and science. Most of us think what yoga is actually hot yoga, some asana, breathing exercises, and a bit of chanting. Today, they are not discussing that. But before I hand it over to them, a bit about the sessions that happen in Lit Agra. We have book meets where we discuss books like any other book club. And then we have eclectic sessions where we discuss anything under the sun. And most of us hold in reverence Indian philosophy, Indian belief systems, Indian faith. And that is what for the past few years we have discussed. We have had grand finales based on that. And today is just one in the series of those sessions. I would also like and I will also request members from Lit Agra that please try to find spaces and niches that for yourself. And Lit Agra would be very happy to host sessions for you. Supposing you have an interest in some particular field, it could be anything. And if you want to discuss it, study it, and talk about it in general, we are happy to provide you space for that. And with that, I'd like Ritu and Saurabh, it's all yours. Thank you, Mohit. Thank you so much. Namaskar, all members and all the guests who have joined today's session. Before I begin today's session, I would just like to convey to all of you with my humble heart that we hold no authority on the subject of yoga. We are still the beginners, we are the seekers, we are the students of this yogic journey. And whatever we've understood and learned so far is only because of our curiosity. और अगर हमसे कहीं पे भी कोई भी गलती होती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ. This is a discussion, this is not a discourse. So later, after the presentation gets over, you may share your own thoughts. And if you have any doubts or if there's anything contradictory, you're just most welcome to share. With this, I will just start with the prayer. Yogena chittasya padena vacha malam sharirasya cha vedyakena yopakarottam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi. I bow my head to the great sages who has given us these scriptures, the study, all the philosophies. I give my gratitude to Lord Shiva, Lord Hanuman, and all our gurus and their great gurus who has given us this knowledge, and hope that they keep giving us the inspiration to study this subject further. इसके साथ मैं सौरभ जी से सबसे पहले पूछूंगी कि योग को समझने के लिए किस दर्शन को समझना चाहिए. आप हमें थोड़ा सा इस विषय पे समझाएंगे. धन्यवाद ऋतु जी. सभी को नमस्कार. तो जैसा अभी मोहित ने कहा कि शुरुआत में जैसे अभी मोहित ने बताया कि योग जो है साइंस भी है और फिलॉसफी भी है. तो हम लोग इसी मोहित के वाक्य को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि योग की जो विज्ञान है उसके पीछे का जो दर्शन है वो क्या है. तो जो फिलॉसफी के लिए जो हमारे यहाँ शब्द प्रयोग में आता है वो है दर्शन. और दर्शन फिलॉसफी से काफी भिन्न है, क्योंकि दर्शन जो है जिस प्रकार से हम विश्व को या किसी वस्तु को देखते हैं वो उसको दर्शाता है. तो यहाँ जो है हम दर्शन शब्द ज्यादा प्रयोग मानेंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे. तो जो हमारे ऋषि मुनि हैं जब वो वेदों की रचना कर रहे थे तो एक चीज, एक जिज्ञासा उनके अंदर बारंबार प्रकट होती थी, वो है सृष्टि को जानने की
जिज्ञासा, सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ इसको समझने की जिज्ञासा। तो इसको जब वो समझने का प्रयास कर रहे थे तो कई सूक्त और कई मंत्रों की उन्होंने रचना कर डाली। इसमें से दो प्रमुख मंत्र आते हैं, नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त। अब इन दोनों मंत्रों के अलावा कई और विचार हैं जो उन्होंने वेदों में प्रस्तावित किए, और इन वेदों से निकल के कुछ दर्शन की धाराएं प्रस्फुटित हुई। अब ये जो दर्शन है, दो विभागों में इनका अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहले तो आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन वो है जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। इन्होंने माना कि वेद सर्वोपरि हैं और वेदों के अध्ययन से हम दर्शन को समझ सकते हैं, अपने सभी चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे दर्शन आते हैं वो है नास्तिक दर्शन। इसमें सर्वप्रथम चार्वाक दर्शन, बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन आता है। जो आस्तिक दर्शन है वो 6 हैं: सांख्य, योग, मीमांसा और न्याय, वैशेषिक और अद्वैत। इसमें जो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुखतः सांख्य और योग की चर्चा करने वाले हैं। सांख्य जो है वो योग के साथ क्यों जोड़ के समझ रहे हैं इसको हम बात करेंगे अभी। योग जो है वो एक दर्शन है और सांख्य से जुड़ा हुआ है। ये जो दर्शन है किस तरह से जुड़ता है और क्यों इसको साथ में हम देख रहे हैं, तो इसमें भगवत गीता का एक श्लोक आता है। इसका अर्थ है कि सांख्य और योग एक ही हैं। इनको अलग देखने की जो गलती है वो बालक किया करते हैं, पंडित नहीं। तो अतः कृष्ण ने भी कहा है कि सांख्य और योग जो है धारा है। ये कहा, इसमें महाभारत में भी इसका जिक्र आता है कि ये दर्शन महाभारत काल में भी विद्यमान था। ये पहला अटेम्प्ट था कि जब वैदिक ज्ञान को हमने फिलॉसफी, जो वैदिक ज्ञान है उसको लॉजिक के थ्रू समझने की कोशिश की। ये एक प्रकृति के निर्माण की प्रक्रिया को समझने की भी कोशिश थी। ये लॉजिकल भी है और मेटाफिजिकल भी है, इसीलिए इसको कई बार वेस्टर्न फिलोसफर्स ने भी इसको स्थान दिया है। अब सांख्य की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है इसको समझते हैं। सांख्य जो है कपिल ऋषि ने दिया है। अब कपिल ऋषि जो है ऋषि कर्दम के पुत्र हैं। इन्होंने जो मूल शास्त्र लिखा था वो तो अब अपने मूल रूप में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई लोगों ने उस पर अपनी टीका लिखी थी। जैसे व्यास जी ने भी कपिल जी के सिद्धांत पर टीका लिखी थी। वो टीका जो है उपलब्ध होती है कई जगह टुकड़ों में। उस टीका से हम समझ सकते हैं कि कपिल मुनि द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था वो कैसे। श्रीमद् भगवत के 3 स्कंद में महर्षि कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य की शिक्षा दी है। देवहूति जो है उनके पास आती हैं, कपिल जी के पास आती हैं और कहती हैं कि इतने वर्ष मैंने साधना की है, योग अभ्यास किया है, लेकिन मुझे विषय आसक्तियों से मुक्ति नहीं होती। तो कपिल जी उनको सांख्य का ज्ञान देते हैं। अब जो सांख्य ज्ञान हमें आज मिलता है वो ईश्वर कृष्ण की कारिकाओं से मिलता है। ईश्वर कृष्ण की जो कारिकाएं हैं और जो श्रीमद् भगवत में जो हमें सांख्य ज्ञान मिलता है वो थोड़ा भिन्न हो जाता है। कहाँ पर अलग हो जाता है? सांख्य जो है निरीश्वरवाद है और जो श्रीमद् भगवत में सांख्य आता है वो ईश्वरवाद है। अब देवहूति जो है उनका परिचय मैं आपको दे दूं। वो अगर वो सांख्य का ज्ञान कपिल मुनि से लेने आ रही हैं तो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि देवहूति स्वयं अनुसुईया जैसी सती की माता है और उनकी जो बाकी 8 पुत्रियां हैं वो भी बहुत बड़ी तपस्वी रही हैं और स्वयं कपिल को जो है विष्णु का अवतार माना जाता है, जो कि
उनके पिता कर्दम ने तपस्या कर उनको पाया था। तो ऐसा वैष्णव भी कहते हैं और ये हमें श्रीमद् भगवत में मिलता है। लेकिन जो आज हम अपनी चर्चा का जो बेस बनाएंगे वो हम सांख्य कारिका को बनाएंगे, जो ईश्वर चंद्र द्वारा लिखी गई है। अब ईश्वर चंद्र ने भी ये ज्ञान जो है कपिल मुनि से एक गुरु शिष्य परंपरा के रूप में पाया है और उन्होंने ये सांख्य कारिकाओं की रचना की। जो सांख्य कारिकाएं हैं वो सृष्टि के सिद्धांत को बताने का प्रयास करती हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और सृष्टि जो उत्पत्ति हुई उसमें दुख क्यों है। तो कारिका का जो सर्वप्रथम विश्लेषण है वो हमारे दुख से है। अब जो दुख को समझने का प्रयास करते हैं तो वो सबसे पहले सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ उसका प्रयास करते हैं। तो जो सांख्य है वो द्वैत है, वो डुअलिस्टिक है। जैसे हम वेदांत को समझते तो जो सांख्य की फिलॉसफी का जो आधार है वो द्वैत है, डुअलिस्टिक है। तो इसमें दो प्रधान तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष परम चेतना है, जितनी आत्माएं हैं उतने पुरुष हो सकते हैं, ये सांख्य का कहना है। पुरुष में कोई बदलाव नहीं होता। प्रकृति वही ऑब्जेक्टिव है, जितनी मटेरियल कॉज है वो प्रकृति में निहित है। एक सिद्धांत आता है या इस दर्शन के अंतर्गत कि कोई कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका कॉज जो है उसमें निहित ना हो। मतलब कोई कॉज, कोई अफेक्ट अगर हो रहा है तो उसका कॉज उसमें छुपा हुआ होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें तेल प्राप्त करना है बीज से, तो बीज में तेल होगा पहले से, तभी हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक उसमें अफेक्ट मौजूद नहीं है कॉज के अंदर, तब तक हम अफेक्ट पा नहीं सकते। तो प्रकृति सब चीजों का कॉज है, मटेरियल एनर्जी सभी चीजों का कॉज है। और जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो वो मूल प्रकृति कहलाती है। प्रकृति के 3 तत्व हैं, रज, तम और सत, ये हम जानते हैं। तो इन तीनों जो गुण है प्रकृति में मूल रूप से बराबर मात्रा में रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं है, एक जगह ये स्थित है। तो जब प्रकृति का पुरुष से संयोग होता है, जब पुरुष की उसकी दृष्टि पड़ती है प्रकृति के ऊपर, पुरुष दृष्टा बनता है और प्रकृति दृश्य बन जाती है। जब पुरुष दृष्टा बनता है और प्रकृति दृश्य बनती है तो जो कॉन्शियसनेस है पुरुष से प्रकृति में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तत्वों का जो समीकरण है वो बिगड़ जाता है। जो तीनों तत्व बराबर की मात्रा में स्थित थे प्रकृति में, उनकी मात्रा बदल जाती है और यहीं से प्रकृति का प्रारंभ होता है, सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो पुरुष प्रकृति का संयोग हुआ और उसके बाद जो है अनमैनिफेस्टेड जो प्रकृति थी उसने मैनिफेस्टेशन चालू किया। तो सबसे पहला जो तत्व निकल कर आता है प्रकृति का वो आता है महत। जब वो इंडिविजुअल फॉर्म में होती है तो वो कहलाती है बुद्धि। बुद्धि के बाद ये जब तत्व का जो समीकरण है बिगड़ा हुआ ही रहता है, उसके बाद हमारा अहंकार जन्म लेता है। अहंकार हमारी ईगो है, जितना हम मैं से जोड़ते हैं वो सब चीजें अहंकार हैं। इसका आपको विवरण भी और आगे मिलेगा। तो अहंकार में जितने तामसिक गुण हैं उनसे तन्मात्राएं बनती हैं और पंच महाभूत बनते हैं। और सात्विक जितने गुण हैं, सात्विक गुण हैं, उनसे हमारे पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां बनती हैं और 11वीं इंद्रिय जिसे मन कहते हैं उसका विकसित होती है। तो अहंकार के से जो गुण है उनसे हमारी ये 20 तत्व का और हमें प्राप्ति होती है, जिसमें हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं। अब अगर आप देखें तो ये सृष्टि जो है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जा रही है।
सबसे पहले जो थी प्योर कॉन्शियसनेस थी, वो प्रकृति की ओर आई, वो विभाजित होकर 20 अलग अलग तत्वों में विभाजित हो गई। तो ये जो है, अब हम जो प्रकृति का कार्य है वो इसी तरह से समझ सकते हैं कि वो चेतना को विभाजित करके फंसा लेती है। अब इसमें जब हम जो स्थूल प्रकृति है वो इन 20 तत्वों से बनी हुई है। जो नीचे के 20 तत्व हैं जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और पंच महाभूत आते हैं। इस प्रकृति को हम समझते हैं और देखते हैं। जो ज्ञान है वो हमें ये कहता है कि हमें अपनी जो चेतना है इन तत्वों से ऊपर और वापस पुरुष की ओर जाना। तो ये सांख्य ने हमें ज्ञान तो दे दिया कि हम अपनी जो चेतना है, जो बटी हुई हमारी चेतना है, जो हमारे इंद्रियों में मन बुद्धि अहंकार की ओर लाएं और मन बुद्धि अहंकार से वापस पुरुष की ओर ले जाएं। ज्ञान तो दे दिया, लेकिन ये करना कैसे है ये हमें नहीं पता। अब यही दूसरा दर्शन जो है हमारा योग का जो दर्शन है वो आता है और वो हमें बताता है कि इस चेतना के प्रवाह को तो उसके लिए जो जब वो हम स्टेज को पा जाते हैं योग के द्वारा, वो ही हमारा अल्टीमेट गोल है और उसको कहा गया है कि अविद्या हट जाएगी। अब जो हमारा चित्त है वो क्यों इन सारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है कि रक्त पुष्प के आगे जब रख दिया जाता है एक स्फटिक मणि को तो वो लाल दिखाई देने लगती है। तो वो रंग जो उसने क्रिस्टल ने लिया है वो चित्त का अपना रंग नहीं है और वो प्रकृति जिससे जुड़ा हुआ है उसका रंग है। तो जब हमें प्योर क्रिस्टल देखना है तो उसके लिए हमें योग की आवश्यकता है। वैसे तो सांख्य और योग अपने आप में पूर्णतः अलग अलग दर्शन है, लेकिन उनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नता भी है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने अपनी एक पुस्तक में इन दोनों में इस तरह से बताया है कि सांख्य जो है निरीश्वरवाद है और जब योग जो है वो एक सांख्य ऐसा सांख्य है जो ईश्वर प्रधान। जो योग का जो ईश्वर है वो क्रिएटर नहीं है, वो प्रकृति अपना कार्य, पुरुष और प्रकृति जो है वो क्रिएशन का कार्य अलग करते हैं और जो ईश्वर है वो एक प्रधान तत्व जरूर है, लेकिन वो सृष्टि में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, वो कर्म से बंधा हुआ नहीं है और वो शुद्ध ज्ञान है, ऐसा बताया जाता है योग के ईश्वर के बारे में। अब हमने ईश्वर को हमने योग का प्रारूप तो समझ लिया कि योग और योग का दर्शन क्या है और सांख्य और योग में क्या समानता है, बट अब हमें इस ईश्वर तक पहुंचना कैसे है और योग है क्या, वास्तविक योग का स्वरूप क्या है और इसका पर्पस क्या है, ये हम जानेंगे रितु जी से। जी थैंक यू सौरभ जी। तो सबसे पहले योग को समझने के लिए लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ योग, because in today's time it's very important if we are seeking the ultimate goal, that is that divinity, to join with that supreme power. हमें पहले इन कुछ terms को, उनके literal meaning को समझना बहुत ज़रूरी है और इनका मतलब जो है, इनके जो meanings हैं we cannot find in dictionaries. So for example योग जो है, there is no word equivalent to योग neither in Hindi nor in English. So different sages and scholars have explained these terms in their books and we try to understand from what they have explained. As per B.K.S. Iyengar, yoga is derived from the Sanskrit root yuj, meaning to bind, to join, to attach, and yoke,
to direct and concentrate one's attention on, to use and apply. It also means union or communion. तो एक वर्ड के कई मतलब हैं और अलग अलग जगह जब ये इतनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी है, हम इस जो अभी सौरभ जी ने समझाया कि हम अब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है, और इतना जब हमने कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें लगा ली हैं तो उसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब बन जाते हैं योग के. But in simpler words, we can say that it is the union. It is to unite. In Indian thought, everything is permeated by the supreme universal spirit, that is Paramatma or God, of which the individual human spirit, that is Jivatma, is a part. Now, the system of yoga is so called because it teaches the means by which the Jivatma can be united to or be communion with the Paramatma and so secure liberation. We humans, this human body is really blessed as we are in this form, because this is the only form through which we can attain moksha or liberation. इस ये जो liberation शब्द है या मोक्ष है, ये सब इनके अलग अलग फिलॉसफीज में या अलग अलग जीवात्माएं, अलग अलग लोग इसको अलग नज़र से देखते हैं. कोई इसको जीवन चक्र का अंत कहता है, कोई इसे पीस कहता है, कोई लिबरेशन कहता है, कोई भगवत प्राप्ति कहता है. जो भी आपका मार्ग है, जो आपने मार्ग अपने लिए चुना है, तो आप उसको उसी नज़रिए से देखते हैं. बट अगेन इन टुडेज टाइम व्हाट वी आर सीकिंग इज दैट कॉन्स्टेंट जॉय. एक ऐसा एहसास जहाँ पे कोई पेन ना हो, कोई सफरिंग ना हो. That's what we are seeking, and so we'll call it constant joy in our today's discussion. Now, there can be practically nothing in this outer world, जो बाहरी दुनिया है, which can keep us in this constant joy. Again, in the 6th chapter of Bhagavad Gita, which is one of the most important authority on yoga philosophy, Shri Krishna explains to Arjun the meaning of yoga as deliverance from contact with pain and sorrow. हम योग की प्राप्ति क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमें सारे जो जीवन के जो दर्द हैं, जो जितने भी दुख हैं, उनका सबसे हमको निवारण मिल जाए, और हमारा चित्त जो है, जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, वो एक परम सुख हर वक्त इस शरीर में रहते हुए, ना कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम शरीर को छोड़ेंगे तभी जाके हमें वो परम शांति मिलेगी. नहीं, हम इस शरीर में रहते हुए उस परम शांति का सुख को भोग सकें, उसके लिए हमने योग का रास्ता चुना है. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ योग. I will further explain it, but before that I would like to जो अभी सौरभ जी ने भी चित्त का हमको थोड़ा सा समझाया था, उसको मैं थोड़ा सा और explain करना चाहूँगी. And let's understand this term chitta. Now again, chitta also doesn't have any word in English or in Hindi which is equivalent to it. So I'll have to explain it in my own words through these books. Chitta is nothing but primarily it is the complete composition of the mind with all its facets, with all its components. इसके अंदर सारी जितनी भी हमारी थॉट्स आते हैं, जो हमारे इमोशंस आते हैं, जो भी माइंड से रिलेटेड है, दैट इज इन अ कंबाइंड फॉर्म कॉल्ड चित्त इन योगा सूत्रास. And let's go in a little bit more depth, because once we understand chitta, then only we can understand yoga and the process of yoga. So primarily there are 3 forms, there are 3 facets of chitta. और भी हैं और बहुत सारे हैं, but right now we will not go in that much detail. 3 चीज़ों को हम अगर समझ सकें तो one is manas, another is buddhi and अहंकार. अभी सौरभ जी ने भी इनका अभी मेंशन किए थे तीनों टर्म्स. मैं इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी with few more examples. What is manas? This is the individual mind having the power and faculty of attention, selection and rejection. This is at this point of time, whatever we see, we make a form of it in our mind. वो हमारा एक मानस बन जाता है. And it's ever changing, it is oscillating, it's not decisive, it's indecisive faculty of mind. बस एक फॉर्म बना लेता है. For example, let's just take a small example. In the morning we go to zoo and we see this huge big elephant. We come back home in the evening, we're just mentioning that, oh, we went to the zoo and we saw an elephant. Immediately हमारे दिमाग में उस elephant की पूरी एक पिक्चर बन जाती है.
So वो हमारा मानस है, we imagine that elephant. वो हमारा मानस है, that is the mind stuff. Second comes the intelligence or the reasoning or buddhi, which is the decisive state of mind. वो डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे करना है क्या करना है, जो कि हम जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं. Another example is like a small example. We are in a room and we see there's a window, there's a door. We know that we have to go out of the room through the door and not the window. हमने एक फॉर्म बनाया, दैट इज मानस, दरवाजे का एक फॉर्म बनाया, दैट इज द विंडो, लेकिन हमारी बुद्धि हमें कहती है कि दरवाजे से जाना है, खिड़की से नहीं. You know, so these are like small little examples to understand. Then comes the ego, ahankar, and that is the I maker. I don't need to explain ego, we all know. I am Ritu, I am a woman, I am an Indian, I follow this religion, this is my I factor. जब एक छोटा बच्चा होता है वो बिना बुद्धि और बिना अहंकार के जन्म लेता है, दैट इज प्योर फॉर्म. धीरे धीरे उसमें मानस आता है, फिर उसके अंदर बुद्धि आती है, फिर उसके अंदर अहंकार आता है, जो अभी सौरभ जी ने समझाया. अभी नाउ आई एम टेकिंग द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और यहाँ पर आके हमारा पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं माइंड, विकसित हो जाता है. अब हमें वापस से स्थूल से सूक्ष्म जाना है, तो हमें इनको सबको दोबारा से खत्म करना है, मतलब कि हमें वापस से वो बालक बन जाना है. सो दिस इज द चित्त. अब ये तीन मेन चीज़ें हैं, फिर इसके इन बिटवीन भी बहुत सारी फॉर्म्स बनते हैं, बट ये मेन हम तीन को अगर हम समझ पाएँ तो वी कैन अंडरस्टैंड योग बेटर. नाउ अगेन कमिंग बैक वेयर आई हैड लेफ्ट, द पर्पस ऑफ योग. नाउ today basically we are taking Patanjali's Yoga Sutra, तो उसी के आधार पे हम योग को समझ रहे हैं. So in the second chapter of Yoga Sutra, in the second chapter, the first sutra is Yogah Chitta Vritti Nirodhah. हमने समझा कि योग क्या है, हमने समझा कि चित्त क्या है. Now when we restrain, जब निरोध क्या है, restrain या suppress करना, तो जब हम चित्त की वृत्तियाँ आर द फ्लक्चुएशंस और द मॉडिफिकेशंस, जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं हमारे मेंटल लेवल पे, जो हमारे माइंड स्टफ के ऊपर जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर उसको सप्रेस कर दें, रेस्ट्रेन कर दें, उन वृत्तियों को निरोध लगा दें, तो वहाँ पे हमें योग की प्राप्ति हो जाती है. तो पहला जो सूत्र है इन द सेकेंड चैप्टर, समाधि पर जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये कहा गया है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः. It is the method by which the restless mind is calmed and the energy directed into constructive channels. Again, I'll take the Kathopanishad. In that also, yoga is described when the senses are stilled, when the mind is at rest, when the intellect wavers not, then they say that the wise has reached the higher stage. This steady control of the senses and mind has been defined as yoga. In Yoga Sutras of Patanjali, described yoga as the means by our mind can be made still, quiet, and free from all directions. I'll just take up a small example, which is mentioned in various books, that if we see a lake, pure water lake, which is drinkable, बिल्कुल एकदम fresh पानी है उसके अंदर, कोई गंदगी नहीं है, but still we can't see the bottom of the lake. Why? Because there is this lake, there's this boat on the lake which is moving, and it's forming these ripples on the surface of the lake. Because of these ripples, we can't see the bottom. Once this boat stops, so what are these ripples? These are the chitta vrittis, the modifications, the fluctuations happening on the mind level, the mind stuff. Once these stop, then only we can see our own conscious. What is that conscious? At the bottom of the lake. या वो अगर हमने उस conscious को जान लिया, तो हम उस क्योंकि we are part of that, you know, superior power, तो हमने उसको जान लेते हैं, तब और बहुत सारी आंखें खुल जाती हैं. And so this is a very small example which keeps reminding us. So ये एक example है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कहते भी हैं कि जो ये जो sages थे, ये जितने भी पतंजलि हो गए, ये बड़े बालक स्वरूप थे, बड़े छोटी छोटी चीज़ों को देख के बड़े खुश हो जाते थे. They loved nature, they liked animals, they loved to stay in the jungles, because इनका एक बाल स्वरूप होता था. तो हम हमको वापस पीछे जाना है. That is what yoga is. Now सौरभ जी, हम इसको फिर आगे ले चलते हैं कि
योग सूत्र और पतंजलि योग को माना जाता है कि ये उसका आधिकारिक शास्त्र है, पर क्या और भी शास्त्रों से हम योग का ज्ञान मिलता है? आप इस पे हमें थोड़ा सा और समझाएं। बहुत अच्छा बताया ऋतु जी आपने चित्त के बारे में। वाकई चित्त को समझना बहुत मुश्किल है। अब योग के बारे में जैसा ऋतु जी ने कहा, एक आधिकारिक शास्त्र जो है पतंजलि का योग सूत्र है, लेकिन क्या वाकई पतंजलि के योग सूत्र से पहले कोई शास्त्र नहीं है योग का, या योग का हमें कोई विवरण या वर्णन नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है। योग शाश्वत रहा है, हमारे धर्म परंपरा से शुरू से जुड़ा रहा है। तो जो मैंने जब इसके बारे में ढूंढना शुरू किया तो मुझे कुछ वेदों में प्राण उपासना के मंत्र मिले। अब वेदों में जो योग की पद्धति जो फॉलो कर रहे हैं वो प्राण उपासना है, बल्कि योग शब्द भी आता है। तो इसमें एक मंत्र में ये ऐत्रेय आरण्य का मंत्र है, और इस मंत्र में मैं सीधे इसका जो हिंदी अर्थ है वो पढ़ रहा हूँ। इस मंत्र में दृष्टा, अब देखिए दृष्टा शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि दृष्टा पतंजलि के योग सूत्र में भी आता है। इस मंत्र में दृष्टा दीर्घतम ऋषि कह रहे हैं कि मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इंद्रियों का गोपा अर्थात रक्षक है। वह कभी नष्ट नहीं होने वाला है। यह भिन्न भिन्न मार्गों अर्थात नाड़ियों के द्वारा आता और जाता है। मुख तथा नासिका के द्वारा क्षण क्षण में शरीर में आता है, और परंतु अधिकई मंत्र भी इस तरह के मिलते हैं जहां प्राण उपासना का वर्णन है। जो सांख्य और योग की चर्चा महाभारत में मिलती है वो बड़ी सुंदर है। इससे हमें पता चलता है कि पतंजलि से पहले भी एक ऋषि योग पे कार्य किया है। उन ऋषि का नाम है हिरण्यगर्भ। तो एक मंत्र में कहा गया जैसे सांख्य के वक्ता कपिलाचार्य परम ऋषि कहलाते हैं, वहीं योग के वक्ता हिरण्यगर्भ है। अब हिरण्यगर्भ का लिखा हुआ कोई शास्त्र तो नहीं मिलता, लेकिन जब सांख्य पर व्यास जी की टीका पढ़ी जाती है तो उसमें हिरण्यगर्भ का उल्लेख आ जाता है। महाभारत में एक और मंत्र आता है, एक श्लोक आता है जिसमें फिर योगी लोग इन्हीं की नित्य पूजा करते हैं और संसार इन्हीं को विभु कहता है। अब हिरण्यगर्भ, क्या ये वही हिरण्यगर्भ हैं जिनको सृष्टि के आरंभ में सारी महत का सोर्स माना गया है, सारी कॉन्शियसनेस का सोर्स माना गया है, या उन्हीं के नाम पर कोई ऋषि हुए हैं? ये कहना इस समय मुश्किल है। ऋतु जी ने अभी जब चित्त और मन बुद्धि अहंकार की बात की तो कठोपनिषद में एक बड़ा सुंदर उदाहरण देके इसको समझाया गया है। हम एक रथ कल्पना की गई है कि हमारे जो पूरा सेंसेस हैं वो घोड़े हैं और उनकी रास है, और ये रास जिसके हाथ में है वो हमारा मन है, वो सारथी है, और ये रथ का जो मास्टर है, जो मालिक है, वो हमारी बुद्धि है। अगर मन जो है चाहे तो इस रथ को गलत दिशा में ले जा सकता है, और वह चाहे तो सही दिशा में ले जा सकता है। इसका जो संचालन है अगर बुद्धि के हाथ से निकल जाए तो बुद्धि को मन पे, सारथी पे कंट्रोल करना है ताकि रथ जो है सही दिशा में जाता रहे। तो इसी तरह से योग के विभिन्न स्वरूप हमें अलग अलग उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद रामायण काल का एक शास्त्र आता है वाशिष्ठ योग। अब वाशिष्ठ योग जो है इसलिए एक योग के लिए इंपॉर्टेंट शास्त्र बन जाता है क्योंकि यहाँ राम को शिक्षा दी गई है, राम को योग की शिक्षा दी गई है।
जब राम को विषाद योग हुआ, जिस तरह से गीता में अर्जुन को विषाद योग हुआ, उनको कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया, तो यहाँ पर उन्हें अपने गुरु से पूछा कि दुख क्यों होता है। तो ये पूरा जो काफी लंबा शास्त्र है, इसमें उन्होंने अपना एक योग की अलग पद्धति निर्मित की है, जो शुभेच्छा से आरंभ होके तो याग्र तक जाती है। तो इसमें जो वर्णन है वो एक काफी पैरेलल्स मिलते हैं पतंजलि के, अगर हम योग से देखें तो काफी सिमिलैरिटी मिलती है, लेकिन अपने आप में एक अलग शास्त्र की तरह देखा जाता है। दो एग्जाम्पल लिए थे, मैं समय के अभाव के कारण उनको छोड़ रहा हूँ। तो अभी ऋतुजी ने कहा कि भगवत गीता योग सूत्र, ये वेदांत दर्शन के प्रमुख शास्त्र माने जाते हैं। अब योग के लिए भी हम कहते हैं कि ये प्रमुख शास्त्र है हमारा, तो वो कैसे हो सकता है? एक ही शास्त्र Saurabh, we missed a few sentences. दोबारा बोल दीजिए थोड़ा सा. We can't I hear. think his net is not working. Saurabh, we lost you for a moment. तो यार एक तो unmute कर लो and then please go back probably half a minute. Can he hear us? Let me give him a call. Yeah, I don't think so. He's not there. Oh, he's there, but he's not. He doesn't okay. realize he's Okay. losing. Okay, I'll just आप Saurabh, maybe भगवत 30 गीता के- seconds. Saurabh, 30 seconds पीछे चले आओ. Just repeat. sure. You can Is start my from screen Bhagavad. visible to you? That Bhagavad Gita slide that you showed. Okay. तो ये जो प्रस्थान हाँ, त्रयी ठीक जो है. है वो वेदांत का की 3 प्रमुख शास्त्र हैं, बट वो भगवत गीता जो है योग को भी समझाने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। अब इसको जरा देखते हैं कि भगवत गीता योग का प्रमुख शास्त्र क्यों बन जाती है। Saurabh, maximize कर लो. यस श्योर। तो जो भगवत गीता के 18 अध्यायों के नाम है, उसमें से 17 अध्याय जो हैं उनमें योग शब्द आता है, जैसे अर्जुन का विषाद योग, सांख्य योग आदि। एक केवल 11वां अध्याय ऐसा है जिसमें योग शब्द का उपयोग नहीं होता। तो अतः ये बात सिद्ध होती है कि ये योग की शिक्षा देने के लिए ही उपयुक्त है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन को कहते हैं कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। एक अन्य जगह योग के लिए भगवान श्री कृष्ण ये जो इस धर्म का जरा सा भी पालन करता है तो भयानक दुखों से और भयानक बच जाता है। के 78वें श्लोक में जब संजय पूरा
गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र को सुना चुके हैं अपने मुंह से, जबकि जो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा है, वो एक बात कहते हैं कि मेरा ये मत है, जहाँ कृष्ण योगेश्वर कृष्ण है, मतलब इससे भी हमें पता चलता है कि यहाँ योग की बात है। अब जो अन्य शास्त्र है, ये तो हमने वैष्णव शास्त्रों की बात, वैष्णव मत से जुड़े हुए शास्त्रों की बात की। अब शैव से जुड़े हुए जो शास्त्र हैं, उनमें भी योग का भरपूर हमें जानकारी मिलती है। कई शास्त्र हैं योग आगम जो हैं शैविज्म से जुड़े हुए। मैं सिर्फ एक शास्त्र की बात यहाँ कर रहा हूँ, वो है विज्ञान भैरव। मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल जितने भी संप्रदाय हैं धर्म से जुड़े हुए, कोई भी हो, जो भी आपको वो मेडिटेशन टेक्निक सिखा रहे हैं, चाहे वो सुदर्शन क्रिया हो या शांभवी मुद्रा हो, वो सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसमें 112 ध्यान की मुद्राओं का वर्णन है, और ये कहा गया है कि 112 जो ध्यान की टेक्निक्स हैं जो इस शास्त्र में बताई गई हैं, इसके अलावा कोई और ध्यान की टेक्निक हो ही नहीं सकती। शाक्त परंपरा में भी योग का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है, योग दर्शन का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे तो देखिए, प्रत्यक्ष आपको योग का कहीं शाक्त समाज में वर्णन जो पतंजलि योग में वो शायद ना मिले, लेकिन योग और तंत्र जब जोड़ के देखे जाते हैं तो पूरा शाक्त संप्रदाय केवल योग की बात करता है। जैसे दुर्गा के कुछ नाम आते हैं जो से हमें देखने को मिलता है कि कैसे शाक्त परंपरा ने योग से जोड़ दिया है। मूल प्रकृति, हमने अभी देखा था कि प्रकृति का जो अभिव्यक्त रूप है, जो बिना किसी अनमैनिफेस्टेड जो रूप था, वो मूल प्रकृति कहलाता है। मूल प्रकृति दुर्गा को कहा गया। तो जब पुराणों तक आया है ये दर्शन, तो इसमें जो पुरुष और प्रकृति है, उनको ही ईश्वर का रूप दे दिया गया। प्रकृति कहीं ना कहीं देवी रूप में परिवर्तित हो गई। एक जगह देवी का नाम आता है मूलाधार निवासिनी। अब मूलाधार निवासिनी से क्या अर्थ है कि जो हमारे शरीर में मूलाधार चक्र है, उसमें जो एनर्जी निवास करती है, जिसको हम कुंडलिनी भी कहते हैं, वो भी देवी का ही स्वरूप। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर विराजती है और शक्ति स्वरूप देवी। योग के द्वारा तृतीय जो पादियों का वर्णन आता है, जो सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं, वो देवी के ही द्वारा प्राप्त होती है। इसीलिए देवी का एक नाम सिद्ध। माया का जब वर्णन आता है, जो यशोदा के से गर्भ से जो कन्या जन्मी है, वो कंस के हाथों छूट के जब जाती है तो वो कहती है कि मैं, हम जब देखते हैं कि देवी ने योग का प्रारूप धारण कर लिया है। विष्णु जब क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, जब बताया गया है उसमें दुर्गा सप्तशती में, वो योग निद्रा में। तो योग निद्रा भी जो है वो वो बताती है कि शाक्त परंपरा में योग का समावेश हो चुका है। 64 योगिनी मंदिर हमें अपने भारत में कई जगह देखने को मिलते हैं। 64 रूप देवी माँ के योग से जोड़ के बताए गए। दुर्गा सप्तशती में कई जगह पे योग का जिक्र आता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा। वैसे तो ये बड़ा इग्नोर हो जाता है उदाहरण जो है। एक जगह पतंजलि अपने योग दर्शन में कहते हैं कि अगर व्यक्ति योग में प्रारंगत हो गया है और समाधि पा गया है, तो उसके निकट जितने भी लोग हैं वो भी अहिंसा प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे बड़े सुंदर तरीके से पुराणों में यूज किया गया है कि जब आश्रमों का वर्णन आता है, जब मेघा ऋषि के आश्रम का वर्णन मार्कंडेय ऋषि दुर्गा सप्तशती में दे रहे हैं, तो जब सबसे पहले जब उनके यहाँ सूरत और समाधि पहुंचे हैं, तो वो इस चीज से चौंकते हैं कि वहां शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। तो जो योगियों के समक्ष पशु भी रहते हैं, वो हिंसा प्रवृत्ति छोड़ देते हैं।
इस तरह से हमें कई छोटे छोटे उदाहरण, योग के उदाहरण पुराणों में भी देखने को मिलते हैं। अन्य धर्मों ने भी कई जगह योग से बहुत प्रेरित होकर काम किया है। बुद्धिज्म में, मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, हालांकि बुद्धिज्म को कई लोग कहते हैं ये तो योग का ही एक अंश है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा कि जहाँ उनका मंत्र है ओम मणि पद्मे, तो इसमें जो मणि शब्द आता है वो मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब जो कि सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसकी हम बीच बीच में चर्चा करते रहे हैं, वो है पतंजलि का योग सूत्र। उसकी चर्चा के बिना तो योग की चर्चा हो ही नहीं सकती। अतः मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा ऋतु जी से कि वो इस चर्चा को आगे ले जाए। जी सौरभ जी, बहुत ही सुंदर, और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि कितने सारे ग्रंथों में और कितने सारे एराज में योग को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, लेकिन हम सब एक ही तरफ, हमारा जाने का एक ही जो हमारा उद्देश्य है वो एक ही है। नाउ अब हम आगे चल रहे हैं। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड, ये सब कुछ जान लिया कि योग क्या है और सारे हमने शास्त्र जान लिए, सब जान लिए, लेकिन अब इसको पाना कैसे है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। एंड ये सब पढ़ने के बाद, ये सारे बड़े बड़े टर्म्स सुनने के बाद एक बार एक घबराहट सी हो जाती है कि अरे यार दिस इज़ टू मच, बट नहीं, ऐसा नहीं है। We just have to take one step at a time, and in Patanjali's Yoga Sutra, it has been explained very beautifully, right from the age of 1 year, 2 year baby, the yoga process begins. Or the Yoga Sutra of Patanjali, it is divided into 4 chapters or 4 padas. The first deals with the Samadhi pad, the second deals with the Sadhana pad, that is the means by how you can achieve yoga. The third enumerates the powers or the vibhutis. While we are in this process, जो हमको powers मिलते हैं उन सब का उसके अंदर व्याख्या है. And then comes the fourth, which deals with the absolution or the केवल्य पद, कि हमें जो ultimately जहाँ हम पहुँचते हैं उसका उसमें व्याख्या है. तो जो सेकंड चैप्टर है जिसके अंदर कि हम प्रोसेस की बात करते हैं, in that they have described the Ashtanga Yoga. Patanjali has described the Ashtanga Yoga. You must have heard this word several times, but let us just understand the, what are these 8 limbs, what are these Asht Ang of Patanjali's Yoga Sutra. जैसे कि हमारे शरीर के किसी भी एक अंग को अगर हम हटा दें तो उस अंग का जो काम है वो कोई दूसरा अंग नहीं कर सकता है. पैरों का काम चलना है तो पैर ही चल सकते हैं, हाथ पैरों का काम नहीं कर सकते हैं. आँखों का काम देखना है या कानों का काम सुनना है. वैसे ही ये जो 8 अंग हैं, इनका हर एक का अपना एक काम है जो कि वो ही कर सकता है. किसी को भी हम माइनस नहीं कर सकते. एंड इट हैज़ अ सीक्वेंस, वी हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस with lot of discipline. What are these 8 limbs? That is yama, niyam, asan, pranayam, pratihara, dharana, dhyan, and samadhi. So let us understand these 8 limbs. I'll try and explain in as much brief as I can. Yam. Now these are the great universal commandments. Patanjali lists 5 of these yamas. And what are these 5 yamas? Ahimsa, non-violence, satya, truth, Astya, non-stealing, brahmacharya, self-control, and aparigrah, unselfishness. ये जो चीज़ें हैं, ये that is universally practiced. It is not for any particular region or a religion or a country. It's not just in India. This is practiced all over. It is for the entire humanity. If these commandments or the rules of morality for society and the individual, if not obeyed, that can bring a chaos, total chaos. जो आज हम देख रहे हैं चारों तरफ, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का पालन ना करने की वजह से ही हम ये सब जो भी wars और ये सब हो रहा है, total violence जो हो रहा है, this is because of this. So when these sages, they brought these philosophies, they made yam as the root. ये तो root है. When a child is just born, these things are started
to teach them. और हमारे अगर पंचतंत्र की कहानियाँ अगर हम देखें बच्चों की, तो यही सारी चीज़ों के आधार पे उन कहानियों को बनाया जाता है, जिससे कि ये उनके बच्चों की हैबिट्स में आ जाए, and they never forget, no matter in what field they go. But this becomes the root of their life. Then comes the niyam. Niyam refers to the personal disciplines. यम जो है वो एक सोसाइटी के लॉज हैं, नियम जो है वो पर्सनल डिसिप्लिन्स हैं. व्हाट आर दीज? शौच, क्लेanliness, संतोष, कंटेंटमेंट, तपस, ग्रेट एफर्ट, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, ईश्वर प्रणिधाना, फेथ इन गॉड. So I don't need to explain these in detail. We understand. Again, I would say that if we go back like 20-30 years back, these things were like, effortlessly these used to be done. Morning में नहाना है, you have to clean yourself. संतोष, contentment के lessons हमें continuously दिए जाते थे. We were taught to make effort in everything we do. स्वाध्याय, self study, and ईश्वर प्रणिधाना, which means that to have faith in that supreme power, because faith is very important. We cannot seek for anything unless and until we have that the very thing, faith, जो विश्वास जिसे हम कहते हैं, अगर हमें उसमें विश्वास ही, आज हम योग की बात करें या हम किसी भी धर्म की बात करें, अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते. तो ये भी चीज़ हमें बचपन में ही सिखा दी जाती है. तो बेसिकली यम एंड नियम, these two are practiced and to an extent achieved by the age of 7. And the third step, which is the asan in yogic journey, that is started only once you are 7 years old. This is how it has been mentioned in the Patanjali's Yoga Sutra. So yam niyam is the first, third is the first two, and the third is asan. Asan, which is the third limb of yoga, is nothing but the posture. Asan brings steadiness, health, lightness in the limbs. A steady and a pleasant posture produces mental equilibrium and prevents fickleness of mind. Asanas are not merely gymnastic exercises. These are postures, these are asanas in which we attain the samadhi. जो हम आगे के जो steps करेंगे, वो जब तक हमारा शरीर, हमारा ये जो this is the vehicle of the soul. If this is not fit, we cannot move further. अगर हमारा vehicle ही में ही problems होंगे, if it is full of diseases, we cannot move forward as per Patanjali. So to reduce the fatigue and soothe our nerves, but their real importance lies in the way we train our mind and discipline our mind. So we often say that this third step of yogic journey is by the body for the chitta or for the mind stuff. It is not by the body for the body. आजकल क्या हो गया? It is by the body for the body. So it is nothing but a total circus on the mat. But actually we have to keep reminding ourselves that this yogic journey is to achieve something else, which is like much ahead. अभी तो हम सिर्फ इस शरीर के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं. And people try to do asanas for the sake of good health, which is just a byproduct. And they start thinking, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो थर्ड चैप्टर है विभूति, जिसके अंदर आपको बहुत सारी, जब आप इस योगिक जर्नी पे चलते हैं तो आपको बहुत सारे इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. टू गेट अ गुड हेल्थ इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, बट दैट्स नॉट द मेन प्रोडक्ट. But nowadays what is happening, that this byproduct becomes the main product and we forget everything else. So we have to keep reminding ourselves that we are seeking something else. This is not what we are seeking for. There are many examples. Maybe if we have more discussions later, we can explain better this asana facet of Yoga Sutra. Now, I'll just take up these 3 sutras from Patanjali's Yoga Sutra. Again, these are from the second chapter. To understand asana better, Sthira Sukham Asanam, that is, asanas are steady and comfortable positions. Prayatna Shatilya Ananta Sama Patibhayam, asana is conquered when there is total cessation of exalted efforts and when the mind is capable of being absorbed in the infinite. If you are doing a शीर्षासन और आपको उसके अंदर बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, आपके शोल्डर में पेन हो रहा है, आपका सर चकरा रहा है और आप एकदम अनकॉन्शियस हो गए और आप गिर गए, तो यू विल हैव अ मेजर इंजरी. यू मे नॉट बी एबल टू कम बैक एंड देन पीपल से कि भाई आसन कर रहे थे और ये एक्सीडेंट हो गया उनका. सो यू डोंट गो इन शीर्षासन
it is not done with so much of effort. Basically, you have to do a lot of other asanas to reach शीर्षासन. इसीलिए कहा जाता है कि स्थिर सुखम आसनम, मतलब जब तक आपका एक आसन स्थिर ना हो जाए, उसमें आपको सुख की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आप आगे ना बढ़े. प्लस जो भी आसन करें उसके अंदर आपको ये चीज़ फील होनी चाहिए. ततो द्वंद्व अनभिगतः, थर्ड एक और सूत्र है जो कि एक्सप्लेन करता है आसनाज रिजल्ट इन अ डुअलिटी फ्रेड स्टेट ऑफ चित्त. आसन से ही हमारे को जो हम आगे बात करेंगे प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि की, तो वो सब चीज़ों जो प्रैक्टिस होगी वो आसन से ही शुरू हो जाएगी. इस यहीं से आपका जो डुअलिटी है, जो डाउट्स है, जो चित्त में वृत्तियाँ हैं, वो सब आपकी कहीं ना कहीं कम होती चली जाएंगी. And once our body is completely fit to sit in the asanas, we begin learning pranayam. We should never hurry to do pranayam. So ये चीज़ आप लोग समझिए. And I always tell people that please follow some proper lineage or a proper guru, because this can be really very dangerous also if we just move in the wrong direction. Pranayam की हम बात करें तो prana means breath. It means respiration, it means life by vitality, it means wind, energy or strength. It also connotes the soul as opposed to the body. Again, pranayam का कोई एक word नहीं है जिससे कि हम पूरे प्राणायाम को समझा सकें. It has various explanations. Let us just understand a little bit more. Ayam means length, expansion, stretching or restraint. So जब प्राण, that is the breath, जो आप श्वास ले रहे हैं, और आयाम को अगर हम उसको कितना एक्सपैंड करना है, कितना उसको रेस्ट्रेन करना है या उसको रोकना है, दैट इज आयाम. जब हमारा ये कंट्रोल हमारा होने लगता है, दैट इज व्हेन वी से दैट वी आर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम. Millions of people will have millions of ways of doing pranayam. If it is just a conditioning of your breath, आप उसको कैसे कंडीशन करें, basically you have control over your breath, that is pranayam. So this control is over all the functions of breathing, namely inhalation, जो कि पूरका बोलते हैं जिसे, exhalation, रेचका, and retention, that is कुंभक, जो हम रोकते हैं श्वास को, जो हमारी ब्रीदिंग है उसको रोकने को कुंभक भी बोलते हैं. ये सब टर्म्स आपने कभी कभार कहीं ना कहीं सुने होंगे. So pranayam is nothing but the science of breath. It is the hub round which the wheel of life revolves. Now see, if we tame lions and elephants, these are like big, huge, very dangerous animals. So is pranayam, pran. They are also equally dangerous. We have to tame it very slowly and very cautiously. Doctors also, if you have blood pressure, they will tell you कि कपालभाति मत करिएगा. We've never tried to understand कि कपालभाति क्यों नहीं करिएगा. So प्राण जो है वो भी बहुत ही उसको कंट्रोल तरीके से सीखकर और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए. Otherwise, it can kill the practitioner. Kill का मतलब, I don't mean like kill, but yes, it can be really dangerous. That's what is warned in Hatha Yoga Pradapika. The chitta, which is the mind, reason or the ego. अभी सौरभ जी ने भी explain किया था कि it is like a chariot that is yoked to a team of powerful horses, and one of them is प्राण. जो ये प्राण है, ये एक उसका एक घोड़ा है. कई है, उसमें प्राण एक है. Another is Vasana. I'm taking up these two horses. So if your desires start controlling this chariot, just imagine where will you go. And if your pran controls the horses, it will control all the other senses, जो भी आपके और senses है. So this breathing directly has its link over this chariot of the chitta. This is like very beautifully explained, and we don't have much time, so I'll have to go a little fast. So all this emotional excitement and whatever feelings, emotions we have, it can be very much controlled if we practice pranayam in the right way. तो ये जितना भी हम पढ़ते हैं, इसके बहुत उन्होंने easy तरीके भी बताए हैं उसको मास्टर करने का. It is not a rocket science. It just requires some discipline, a continuous effort. Now once we have controlled our breathing, then we move forward, and then comes the pratyahara.
once we've started controlling our senses, then the stage of pratyahara comes when we have control over our senses, and then only we reach the concentration, that is dhyan. So I'll just take up quickly the pratyahara, the fifth stage of yoga, where all the senses are brought in under control. तो जब हम चित्त की बात कर रहे थे और मानस की बात कर रहे थे, तो मानस का डायरेक्ट लिंक जो है वो हमारे सेंसेस से है, जो कर्मेंद्रियां हैं. सौरभ जी ने अपनी टेबल में भी उसको समझाया था कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको उसका लिंक जो है वो आपके मानस से है. और यहाँ पर आके प्रतिहारा पे आके वो प्रैक्टिस हमारी शुरू हो जाती है. दिस इज नाउ वी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, हाउ टू अटेन इट. Everything goes hand in hand, but then still it has its own steps. It's very important to understand that when one reaches this stage, sadhak goes through a searching self-examination. अभी तक उसको यहाँ तक जब इसको अभी तक उसकी बाहर की चीज़ों पे कंट्रोल होता है, अब वो अपनी आंतरिक कंट्रोल उसका शुरू हो गया है. This stage can even be very dangerous actually. I'll tell you later why. To overcome these deadly but attractive spell of sensual objects, he needs the installation of adoration or bhakti by recalling to his mind the creator who made the objects of his desire. यहाँ से आके आपको भक्ति मार्ग की या फिर ज्ञान मार्ग की आवश्यकता शुरू हो जाती है. He also needs a lamp of knowledge at this stage. हम कई बार कहते हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब सारे योग करने के बाद अल्टीमेटली तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भक्ति योग करना है कि हमें ज्ञान योग की तरफ जाना है कि हमें कर्म योग की तरफ जाना है. अभी तक हम कर्म करते आए हैं, अब हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट सीकिंग भक्ति, क्योंकि नहीं तो ये सेंसेस हमें कहीं का कहीं ले जाएंगे. And knowledge is of course very important. Without reading and gaining knowledge, we cannot attain all this. इसको आप अभी सौरभ जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. जो हमारे गुनाज हैं, रजस तमस एंड सत्व, ये यहाँ पे आके इनका अभ्यास भी करना अपने आप ऑटोमेटिकली होता है. वी स्टार्ट सीइंग हमारे विच वर्ड्स, विच एक्शंस, वॉट एवर वी डू, कौन सा गुण हमारा प्रधान है, वो रजस है, वो तमस है या सत्व है. मैं अभी इनकी एक्सप्लेनेशंस पे नहीं जा सकती, but if God permits we will have further discussions and we can still go in more details. तो यहाँ पे आके हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है. जब ही हम प्रत्याहारा की तरफ और हम आंतरिक अध्ययन की तरफ जाते हैं, तब हमें ये सब कुछ दिखाई देने लग जाता है. एंड विथ डिसिप्लिन एंड विथ प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा हम इन पे अपने गुणों का बैलेंस करना शुरू कर देते हैं. अगर हमारा रजस तेज है तो हम उसकी प्रैक्टिसेस शुरू करने लगते हैं कि हमको कैसे इसको कम करना है. अगर हमारा तमस बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे कम करना है. एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू द सात्विक फ्रेम ऑफ माइंड. एंड वंस वी मूव फॉरवर्ड टू सात्विक फ्रेम, देन dharana enters. Again, it automatically enters. Everything happens effortlessly. All we have to do is consistently we have to do it. एक फोकस रखना है कि जाना कहाँ पर है. Then comes the dharana. When the body has been tempered by asanas, when the mind has been refined by the fire of pranayam, and when the senses have been brought under control by pratihara, the sadhak reaches the sixth stage, and that is dharana. Here he is totally concentrated on a single point or on a task in which he is completely engrossed. कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, जो भी चीज़, अब उसमें इतनी पावर्स आ चुकी है, इतनी विभूतियाँ आ चुकी हैं कि अब वो जिस भी चीज़ पे फोकस करेगा वो उसका काम पूर्ण होगा. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. वी सी लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, सम सेलिब्रिटीज ऑल्सो, दे हैव रीच्ड, उन्होंने अपने आप को इतना फिट कर लिया. ओलंपिक्स में जो एथलीट्स हैं, they win these medals and stuff because they have reached this stage. लेकिन अभी उनके सेंसेस उनके कंट्रोल में नहीं है. सो इट कैन बी लिटिल बिट डेंजरस अगर आपका फाइनल एम आपको क्लियर नहीं है तो. सो हियर द रियल माइंड गेम स्टार्ट्स. So in Yoga Sutra, mental states have been classified in 5 groups. Yeah, Saurabh ji will just show these on the slide also. इससे पहले जो एक slide थी. हाँ, so I am not going to explain all these states. ये क्षिप्त state, विक्षिप्त, मुद्ध, एकाग्र, निरुद्ध, आप लोग इसको बाद में जाके अदर स्टेट ऑफ माइंड्स को
समझ सकते हैं because we don't have much time here. So I'm directly coming on the एकाग्र state of mind, that is जब आप धारणा concentration, ये एकाग्र चित्त की बात कर रहे हैं हम, जब आपका एक single pointedness आ जाता है, where the mind is closely attentive and the mental faculties are concentrated on a single object with sattva gun prevailing, वो बहुत important है. A very beautiful example is from Mahabharat, when Arjun, आपने सबने कहानी सुनी कि द्रोणाचार्य had given this contest to his students of this archery contest, and he asked to aim on this bird's eye sitting on the tree. When he asked everyone कि क्या दिखाई दे रहा है उनको, तो somebody said that I can see this beautiful tree and the fruits and the leaves and this and that. When he asked Arjun that describe what are you seeing, so he says that first I see the bird, then its head, and lastly he could see nothing but the shining eye of the bird, and he was the only one who could aim. और उसने उस चिड़िया की आँख को भेदा था. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इससे हम समझ सकते हैं कि एकाग्र चित्त जब होता है तो आपको आपका जो एम है वो दिखाई देने लग जाता है पूरी तरीके से. But again, I would say that this at this state of mind, it's a bit dangerous for the sadhak, because at this point of time he becomes supremely egotistical. एकाग्र person needs bhakti mark. उसको एक divinity चाहिए जिसके ऊपर वो focus कर सके, तभी वो आगे जाए. नहीं तो वो ये मैं फैक्टर जो होता है ना, ईगो वाला जो होता है कि मेरे को ये पता है, मैं ये एंड ऑल दैट अराइजेज एट दिस स्टेज. इसीलिए इसको और हम आगे फिर कभी लेंगे. सो वी concentrate on that divinity and then unlock the divinity within ourselves. Then we move forward to dhyan step, and that is the 7th step of Yoga Sutra. Now यहाँ पर आके there's nothing else other than आनंद. यहाँ पे आके आपको सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा. Now let me explain you with an example that when oil is poured from one vessel to another, one can observe the steady constant flow. Now with this flow of concentration, जो धारणा का ये जो flow है, ये when it is uninterrupted, the state that arises is the ध्यान और meditation. अब यहाँ पे मानस भी आ जाता है. आपका फॉर्म क्या है, आपके मानस में बना हुआ क्या है. अगर वहाँ पे आपने उस डिविनिटी को बना रखा है, तो आपका जो धारणा के साथ जो आपने ध्यान लगाया और उस फॉर्म को बनाया, तो क्या बनाया आपने, उस डिविनिटी को बनाया अपने अंदर, और आपने उसको अंदर जो आपकी अंदर की कॉन्शियसनेस है, that opens up. You start seeing that consciousness through your own eyes. So you require a lot of meditation and a lot of practice for this. चित्त की वृत्तियों को जो हम बात कर रहे थे, उनको हमको रोकना पड़ता है, and then only we can attain this. इसके बाद की जो है वो है समाधि. Samadhi is the end of the sadhaka's quest. That is what we are all attaining. That's what we are all seeking for. Samadhi is not leaving your body and उस आत्मा की कहते हैं कि भाई हम परमात्मा के साथ मिल जाएंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे. ये मतलब नहीं है. हम शरीर को छोड़ने का मतलब है कि हम इस शरीर में रहते हुए इस शरीर को छोड़ दिए और उस परमात्मा के साथ जब मिल गए, उसको समाधि कहा जाता है. And this is the peak of meditation. He passes into the real state of samadhi when his body and senses are totally in his control. It is at rest totally, but yet his faculty of mind and the reasoning are alert. He is totally awake. वो इतना conscious होता है कि अगर हम देखते हैं कि even in the other आपके ये बुद्धिज्म और उसमें भी देखते हैं, वो teach you these different ways of meditation in which you become so alert. There are various ways of doing meditation. You walk, the walking meditation, there are various types of meditation, and they try to make you totally awake. And that's that supreme consciousness. Now, actually, this particular samadhi pad jo hota hai, this is beyond, this is like beyond me. I can't explain. But the person, when he's fully conscious and alert, the yogi sings the song of soul, which is sung by Shankaracharya.
in his Nirvana Shatkam, और शायद उससे ज़्यादा सुंदर तरीके से हम नहीं समझ सकते कि ये fully conscious होना किसे कहते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो हम। I am the pure knowledge and bliss. I am Shiva, auspiciousness in itself. So this is the final stage, Samadhi. And with this, I will just take rest and open the discussion for everybody else here. Saurabh ji, Mohit, we can open the house now. That's all what we had to say for this session. We can, if or any of the participant is wanting to contribute anything to. Let's all switch, yeah, videos. Let's all come on screen so that we can be there. Like, I'm sure there are a lot of questions. let's all switch on our videos. So, Saurabh, let me, because nobody else is asking. So, हाँ जी, मोक्ष और मतलब where मोक्ष किधर है? Where does it start? In this, is it a separate thing? हाँ नहीं, मोक्ष सेपरेट थिंग नहीं है। देखिए, जो हर दर्शन है उसमें नाम अलग हो गया। यहाँ जो हम केवल्य की बात कर रहे हैं वही मोक्ष है। केवल्य के बाद हमें सृष्टि के चक्र में दोबारा नहीं आना है, यही मोक्ष है। अब ये जो पुनर्जन्म का जो बंधन है, जब ये मुक्त हो जाता है, इसी को मोक्ष कहते हैं। और जो योग और सांख्य जिसको मोक्ष कहते हैं वो केवल्य है। वेदांत जिसको मोक्ष कहता है वो भगवत प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म दर्शन है, आप्रोक्ष अनुभूति है। शैविज्म में उसको शिव के दर्शन हो गए या शिव प्राप्ति हो गई, उसके लिए वो मोक्ष है। तो एक टर्म जरूर अलग है, लेकिन सब में बात वही है कि ये मोक्ष है। तो यहाँ पर योग में केवल्य मोक्ष है, जब समाधि आ गई, और समाधि के बाद जो है मोक्ष है। When you know your true nature, when you understand that you are the Brahman itself, which is like easier said than done, मतलब उसके लिए ये पूरी क्रिया है योग की, और ये आपको वहां पर लेकर के जाती है। उसके बाद then you are liberated. उसके बाद कोई सुख, कोई दुख, कोई परेशानी कुछ नहीं रह जाती, and you can just enjoy a blissful state. That is that Satchitanand Sachidanand. Rupa. ठीक है मैम, आप कुछ पूछ रहे थे? किससे कह रहे मोहित? No, it's not just questions. You can also share your own views. आप कुछ और, if you want to give your own input. I used to follow Chinmaya Mission, and Swamiji always used to say that when you start sitting for introspection, the ulcers of the day start bleeding at the time of meditation. Meeting. Yeah, that's true. There was a Hi. wonderful book Hello, called everyone. Chit Shakti Vilas. Hello. Huh. जी सर, बोलिए। There was a book called Chit Shakti Vilas by Swami Muktanand, and it was such a wonderful book. Ritu was talking about Chit. Saurabh also mentioned that. So Chit Shakti Vilas is a book which is mesmerizing, to say the least, in its impact. Saurabh, you read that book? No, I haven't seen. It discusses what you were discussing about the chit.
Chit Shakti Vilas talks about the unimaginable dimensions that the human mind has, and it's a really mesmerizing book to read. Actually, Chitta is understood as our अंतःकरण. मन, बुद्धि, अहंकार तीनों उसमें चित्त में समाहित हैं. समाहित है. हाँ. अब ये जो अहंकार है, जितना भी अभी तक हम बात करते हैं उसके पर्सपेक्टिव से करते हैं. Whenever we talk about चित्त, it is basically our ahankar which is talking in the daily life. So चित्त is never seen. चित्त is just behind that. जैसे योग के लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है समझने के लिए कि ये दुख को कैसे खत्म करता है, वो निद्रा का दिया जाता है. जब हमारे ऋषि मुनियों ने ये योग का आरंभ किया तो उन्होंने ये देखना चालू किया कि हम सबसे सुखी कब होते हैं. तो उन्होंने कहा कि निद्रा अवस्था में हम सबसे सुखी हैं. हमारा दर्द अगर बहुत ज्यादा पीड़ा ना हो तो वो दर्द भी महसूस नहीं होता. कोई अवस्था जो है, वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था, सब में निद्रा हमें बड़ी प्रिय है. लेकिन निद्रा में होता क्या है हमारे साथ वो हमें ध्यान नहीं रहता. चित्त एक ऐसी चीज है जो निद्रा में मौजूद रहता है और वो तब भी जागृत रहता है, तब भी जागृत रहता है, तब भी जागृत रहता है. लेकिन इसीलिए जो चित्त ने याद क्या रहता है फील किया, वो स्मृति रूप से, स्मृति से विक्षेप है. तो उन्होंने निद्रा वाली जो अवस्था है जागृत अवस्था में पैदा करने की जो कोशिश की, उसको उन्होंने योग का नाम दिया. तो ये कनेक्शन जब बनता है, जैसे आप शवासन करते हैं तो शवासन का जो अल्टीमेट फॉर्म है जिसमें you can see your own body lying on the ground and kind of you're watching it from above, and that's the ideal state and the ultimate state of shavasana, because at that moment in time you are physically there in that body but your mind is watching you from above. So that is the kind of state that you achieve. That is Raj Yoga. That's the Raj we Yoga. Are actually detaching ourselves from our consciousness is actually detached from our body and it has become an observer to us. Yes, a total detachment. But achieving that, I sometimes try to achieve that. It's so difficult to achieve that state of mind when you are an observer of your own body and totally detached from it. So difficult to achieve. it is. You can't separate the physical and the You can. That's the ultimate. That's the ultimate what you have to try. That is the difficulty. Yoga because you takes think you of through your the body journey as yourself. Because you think the देखिए first सर, thing is इसमें that भी you बड़े think of your body as एग्जाम्पल्स yourself. मिलते हैं. अब जैसे कहा जाता है कि कितने समय तक योग करना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए या केवल्य हो जाए. तो जब ऋतु जी के साथ में सेशन के प्रिपरेशन कर रहा था तो बात आई इस तरह से. तो अरबिंदो जी जो है जेल में थे जब स्वामी लेले ने उनको ये ज्ञान दिया. तो आमतौर पे स्वामी लेले से उन्होंने पूछा कि ये जो योग पद्धति है कितने साल में मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा या मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे. तो उन्होंने कहा 6 साल लगेंगे आपको. तो बोले 6 साल लगेंगे तो चलिए शुरू करिए देना. तो उन्होंने देना शुरू किया. उन्हें 2 दिन के अंदर ही भगवत प्राप्ति हो गई. तो उनसे पूछा गया कि साहब आपको तो 2 दिन में हो गई, आप हमसे कहते हो 12 साल लगेंगे या इतने साल लगेंगे. तो वो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब है कि वो ज्ञान दे रहे थे और मैं रिसीव कर रहा था. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. अब जब परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक क्रिया योग योगी कथामृत में एक चीज का जिक्र करते हैं कि एक क्रिया जब करते हैं हम तो 1 साल का एवोल्यूशन हो जाता है. सो व्हाट एक्चुअली योगा डज इज फास्टन आवर एवोल्यूशन. उसमें वो कहते हैं कि इतनी लाख हमें क्रियाएं करनी है और तब हमें मिलेगा. जब उनसे पूछा गया कि विवेकानंद को कैसे जल्दी मिल गया तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये वो सब अपने पहले जन्म में जन्मांतर योग करके आए थे. यहाँ पर वो कहने को तो जन्मांतर लग जाते हैं. परमहंस के संपर्क में आए, उन्होंने उनको और पहचान लिया. क्षण में हो जाता है. बुद्ध को क्षण में हो गया, वैसे जन्मांतर लग जाते हैं. That soul was already emancipated. So the level of consciousness and the emancipation of that particular receiving individual is also very important. Who is receiving it? That makes it faster. So when I was reading कठोपनिषद तो उसमें ये था कि आपके साथ आपके कर्म नहीं, आपकी श्रुति भी जाती है. मतलब यथा कर्म यथा श्रुतम. So the knowledge that you've gained
is also transferred to your next life, basically. Birth. It becomes Correct. part of your soul. It becomes Yes. part of your soul. Yeah. हाँ, so अभी तक we just kept कर्म, और या श्रुति को भी हम कर्म में ही जोड़ते थे, but उन्होंने specifically उसमें लिखा था यथा कर्म यथा श्रुतम. That's very important. So what you keep That's on why listening कर्मयोग, and what you keep on that's hearing why is also कर्मयोग important. says that कि कर्म फल नहीं लेना है हमें. So when you actually don't own that result, that कर्म doesn't belong to you. So it doesn't become तो our कर्म संस्कार. समाप्त हो जाते हैं. हाँ. हाँ, वो संस्कार समाप्त नहीं हो बनता जाते हैं. हमारा. नहीं, उसमें से मैं भी चला जाता है ना, मतलब जब आप कर्म को ओन नहीं करते हो. मैं जाएगा तभी तो ये कर पाएंगे. हाँ, ये मैंने बड़ा छोटा सा अपने घर पे देखा. तो जब मेरी मम्मी चिड़ियों को खाना खिलाती हैं, तो ये नहीं कहती कि मैं चिड़ियों को खाना खिला रही हूँ, वो यही बोलती है राम जी की धरती, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट. मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये तो उनका ही खेत है और उनका ही दाना है. आप तो खाली एक वो माध्यम है आप. माध्यम हो. उतना डिटैचमेंट रखना, हाँ. करना बड़ा मुश्किल काम है. But It's I not- think if it stays in your consciousness, then you become mindful. आपको ध्यान आ जाता है right time पे कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए. At times, it is a practice that one has to enter into, but it does help. But आमतौर से That's why करने वालों को वैराग्य is अक्सर one of अहंकार हो the जाता है. very important. That is where you give up the requirement for अहंकार you. ना, basically. हाँ, वो अहंकार हो जाता है. देने वाले का जो अहंकार है, उससे अपने आप को डिटैच करना बहुत मुश्किल काम है. I think that is what is most important. Getting rid of the ahankar is most important, I think. So quite And the often most difficult. that's the most difficult Yeah, part. but Yeah, part. That's what Doing we have a- to work towards. doing That's a good what we have deed, to work towards. doing a good deed is easy, but thinking that Ramji is doing it, that is the most difficult part. No, actually, what happens is that when we are practicing continuously, और अगर आप उसको आप अपने पूरे दिनचर्या में 2 बार 3 बार 4 बार if you are sitting for your meditation, तो ऑटोमेटिकली जो आपका मानस बनता जाता है वो उसका स्वरूप बड़ा होता चला जाता है. देन जिसको अभी हम डिफिकल्टी कह रहे हैं वो फिर एफर्टलेसली होने लगता है. एंड एनीथिंग वी डू वो ऑटोमेटिकली वो फिर आपका वो फॉर्म स्वरूप बन ऑटोमेटिक जाता बनता है. है. हाँ, वो आपका स्वरूप वो बनता है. नेचर बन जाता है. nature बन जाता है. उसके Comes लिए in your सत्संग बहुत जरूरी है. हाँ. True. लिटागरा का सत्संग हो. Because this is very important. The people हमारे- around you, the consciousness around you, the vibrations around you, all these That's- contribute to that achieving that contributes. status. That state is very important. Yeah, so one of our in Shastriya Sangeet also, because that is also a sadhana, उसमें भी वही एक तरीके का योग ही है. उसमें एक गुरु ने बड़ा अच्छा समझाया है कि जो शास्त्र हैं वो समझाए जाते हैं और जो तंत्र हैं दैट इज द टेक्निक्स की तबला बजा रहे हैं और उसकी जो टेक्निक्स हैं वो आपको सिखाई जाती हैं. शास्त्र समझाए जाते हैं, टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं, विद्या जो है वो दी जाती है. अभी जो भी कुछ आज हमने डिस्कशन किया दैट इज ऑल व्हाट आवर गुरुज एंड देयर गुरुज हैव गिवन. कोई 200 300 400 साल पहले वो विद्या वो इवॉल्व होती चली गई एंड टुडे वी जस्ट शेयर्ड. बट कला कब आती है जो कि आपका अपना It's, जो my guru. एहसास होता है, We're just आपकी जो having a अपनी meeting. जो आपके संस्कार बनते हैं, that comes with practice. Yes. So with a Okay. small little practice, everyday practice, we reach that stage. Hi. But दार्शनिक कुछ ये भी कहते हैं कि जैसे म्यूजिक खासतौर से संगीत जो है वो यूनिवर्स का एक इंटीग्रेटेड इनहेरेंट पार्ट है. एंड इवन इफ द मैन वाज नॉट देयर, द म्यूजिक स्टिल वुड हैव बीन देयर. So music is the ultimate of the achievements of the mankind, because it's not created by humans alone. It's created by a divine power. And it is an inherent part and a source of joy for the entire universe, not only for the human beings. Schopenhauer calls it as the will. What he calls as the will, that is what the ultimate music is. तो म्यूजिक तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, वो अलग ही पावर है जो which creates the universe and which kind of generates the universe and makes it go around. शास्त्रीय संगीत का तो खासतौर से उसमें बहुत बड़ा अहम उसका रोल है उसमें. जी जी. नाद और नाद ब्रह्म जो है वो अपने आप में takes you to the ultimate consciousness level. बिल्कुल. तो मुझे बाकी तो शायद कुछ बहुत ज्यादा अभी I'll have to study,
But एक बात समझ में आ गई सर, next session to continue this forward, the right person is you. Who? You. No. Rakesh. No, Saurabh and Nritya have done such a wonderful job. Yes, yeah, that's true. But let's carry this That is forward. true. Excellent. Let's Rita. carry I this mean, forward. I- Yes. It- Yes, yes. Can come It- forward I and, will. you know, take the next session, like, Okay. इसी में We add can, on we can. करते हुए. अब सर It- जैसे रितु ने और सौरभ ने एक जो थे जो चित है, we can expand on each of these Yeah. subtopics. It energizes your brain. Like it makes things go to another level. Your consciousness so- level, your energy level, It is another level. Actually, thinking actually, level. just- Yes. से ना एक sort of bibliography या reference list भी दे सकते हो, मतलब Yeah, just we were thinking of doing that. Sorry, we missed it. वो हम We'll share post it कर on सकते हैं बिल्कुल हाँ? The most essential We did reading. not The have- most हाँ. essential reading. yeah, कि आपने कहाँ से ये उठाया, कहाँ से ये Yeah. उठाया. बिल्कुल. There are 3 or 4 books which give you in brief, what they've given a very detailed account, but there's a couple of books which give you the very essence of yoga and very simple words. And some of the books, Chit Shakti Vilas is one such book, although Chit Shakti Vilas is a slightly higher level and a little more difficult read, but there are other books also which actually gives you that, they open that door for you and you enter that wonderful realm of yoga. बिल्कुल. Can we look at Those who are it? looking for, beginning to read, like I would recommend this, the basic text from Gita Gorakhpur Press, Yeah. Yog Darshan by Patanjali. Darshan. Sood. Then one with commentaries by Swami Vivekanand on This is the- Patanjali Yoga Sutra. This This is a very, very this is good a very, book, very concise and very beautiful one. and This has very easy helped to me read. in- Very easy to Yeah, read. very easy to read. Very easy. to read. It gives a very concise explanation to the Yoga Sutra. Saurabh, I need that book next. Oh, sure. There's a book called The Hindu View of Life by Dr. Radhakrishnan. It also has some That's section also on very yoga. nice. Yes. Very On interesting the read. whole, that One of book the is very finest, nice. I think it's one very of the popular. finest Yeah, I prose was that we'll ever read referring will his be there in Indian the. philosophy for it. Yeah. Radhakrishnan writes beautifully, and some of the best description you'll find in that book. Oh, the very slim book, but sheer delight to read. Yes, that's a book I have. It's a nice book. Wonderful book. You can show the book by Please read that book and discuss, impromptu on that book, like whatever our takeaways are from that book, like, Yeah. I think we can keep 2 or 3 books as our core books and have a session around them because they explain this entire philosophy of living. Yoga is ultimately that philosophy of living only. These 2 or 3 books can make the core of that discussion. Hello guys, We can- it was a Okay. lovely session. If I may add a little bit here, that a lot of it is experiential also. Yeah. So if we start, doing something like, for example, just start with meditation, then slowly we are going to understand the complete theory behind it. And then you can, go back to refer books wherever there is confusion or wherever you feel that now you need to move forward in your journey. But it is very important that we have to experience the whole journey by way of doing it, by way of doing the asanas and finally the meditation part. And for example, if you are doing meditation and you are sitting in a posture, for example, let's say 15 minutes, and during those 15 minutes, if you have, problem in sitting still in that posture, then you would understand that I have to practice asanas so that my body is fit enough to sit in a posture for 15 minutes and then meditate. If you are able to sit for 15 minutes, now you want to reach to 30 minutes. And you see that now, no, my body is not ready for 30 minutes. Then you have to go back to asanas and practice that. Similarly, if, for example, you're sitting in meditation and you see that, something is bothering you again and again, some thought is coming back to you because in your work, perhaps you did not do something right. Something, you did something wrong and that thought is bothering you.
So that means you have to come back and practice the first yam and niyams. You have gone somewhere wrong in your yams and niyams. That's right. So that's how it is. Once you are on that journey, you will understand the whole philosophy of it. And then, of course, you can go back to books again and again and refer and then enhance your knowledge. And then there are so many other types of yogs and, other forms of meditations. So many people who have written so much about it. If you talk about meditation, I think Osho, he is the number of meditations he is given is phenomenal. So that's one of the most delightful writers to read. One of the most delightful writers to read. Delightful writer, and it's not the right time, but if I may, in one of his books, he has also said that the yogis who practice the Ashtanga Yoga, they become quite egoist. नहीं So नहीं वो उन्होंने कुछ और ऐसा नहीं है. हाँ ऐसा चलो मान लेते हैं नहीं है but So you keep your own goals and you keep working to them basically. Basically the thing is that during, for example, if you're practicing asanas, it should not happen that you become you start developing an ego for it. Okay, now I can do this asana, I can do Sheesh asana. So that should not come into your chitta. Yeah, that's very important. Yes. Because ultimately what you're trying to do is cleanse your chitta. अभिमान को हटाना है. पर अगर उस जर्नी में कहीं आपके खुद ही अभिमान आ गया कि यार मैं तो ये आसन कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते, तो वो तो उल्टा इफेक्ट हो गया उसका. कोई बात नहीं, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको एहसास करना कि वो आया है और फिर उसे हटाना is your winning basically. So yeah, sure. Exactly. नहीं, उस अभिमान में कोई खराबी नहीं है. देखिए, उस अभिमान को कंट्रोल करना जरूरी है. अभिमान में कोई खराबी नहीं है. कुछ आप काम नया शुरू करते हैं, उसमें आपको गर्व होना चाहिए. वो गर्व होए, अभिमान ना हो, तो वो अपने आप में बड़ी पॉजिटिव चीज है. ऐसा नहीं कि उससे कोई बहुत थिन लाइन है ना. अभिमान और गर्व के बीच में कोई बहुत थिन लाइन है. वेरी वेरी गर्व पे कोई पिक्चर भी नहीं है. दोनों पे है. इसमें क्या है कि जब अगर हम बात करेंगे, जैसे एक्सप्लेन किया इतने ब्यूटीफुली सौरभ जी ने और ऋतु ने, तो अभिमान या गर्व इनका इतना वो नहीं है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस जितनी इम्पोर्टेंस आनंद की है. अगर आप आनंद फील कर रहे हैं तो फिर इट्स ओके, फिर आपको वो सब बाकी बातें पीछे हो जाती हैं. When you look forward to doing it every day and achieving that, अच्छा मैं कल यहाँ तक पहुंची थी, अब next day probably maybe half an inch more, that looking forward is what gives you a lot of pleasure. तो योगा तो pleasure तो देता ही है आपको in any form that you're doing. आप किस stage पे पहुंचे हो, हर stage पे वो आपको आनंद देता है. नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप सीधा ध्यान से शुरू करो ना योगा को. नहीं, अब बहुत ही ज्यादा अनफिट हो आप, अगर बहुत ज्यादा अनफिट हो तो ठीक है, अगर आप 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते. सी द थिंग इज दैट आपको एक गेम, आपको बैडमिंटन खेलना है. अब आप बैडमिंटन आपने Yeah, definitely, sir. We need another section. One more session. Yeah. But I'll just end by saying that, for example, if you have to play badminton. In your home. Yes. I'm having imagine now how difficult time I have. कल मैं आपको समझा रही थी, यहाँ रोज समझाना पड़ता है. चलो, I rest my case here. नहीं रजनी, ऐसा क्या है? हाँ नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो सब नतमस्तक हैं. नहीं, ये थोड़ा सा और we'll have more discussions to it. In fact, today I shared one Bhagavad Gita में भी अर्जुन ने यही पूछा था
कि भाई अगर मैं नहीं कर पाया, कोई पर्टिकुलर एक स्टेज तक ही पहुंच पाया, जैसा आप कह रहे हो कि भाई हम आसन, कल सौरभ जी कह रहे थे आसन नहीं करेंगे तो क्या हम योग की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि अगर मैं सारे चीज़ें नहीं कर पाया, अपने अष्टांग जो डिफरेंट स्टेप्स है वो नहीं कर पाया, तो क्या योग की प्राप्ति नहीं होगी। और अभी समवन जस्ट सेड कि ऐसा नहीं होता, जहाँ तक जो संस्कार आपको मिल गए वो कैरी फॉरवर्ड होंगे टू योर नेक्स्ट लाइफ। सपोज करिए कि आपने ना यम नियम पे अपना पूरा कंट्रोल आ गया है आपका, दैट विल गो विथ यू, दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ यू, पार्ट ऑफ योर चित्त, और वो आपके साथ, आपके संस्कारों के साथ जाएगा अगले जन्म में, एंड मे बी यू विल बी बोर्न इनटू अ योगीज फैमिली एंड देन यू आर गोइंग टू गेन मोर। और उसके बाद वो कई और जितने भी जन्म लगेंगे धीरे 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 धीरे, एंड देन यू विल बी टोटली क्लेंस्ड। अगर मीरा की बात करें, उनको 5 साल की आयु के अंदर एनलाइटमेंट हो गया था, तो क्या उन्होंने 5 साल की उम्र में सब कुछ पा लिया? ऐसा नहीं है। शी मस्ट हैव कैरीड इट फ्रॉम हर अदर लाइफ्स। कबीर थे, उन्होंने, बुद्ध थे, वो दे हैव ऑल कैरीड इट फ्रॉम देयर पास्ट लाइव्स। शंकराचार्य थे, ही डाइड एट द एज ऑफ 40-42, तो उन्होंने इतनी कम आयु में कैसे? क्योंकि दे वर ऑल कैरिंग इट, एंड हम उनको तब जाने जब उन्होंने पूर्णतः से उसको पा लिया। हम उनके पिछले जन्म का तो हम देख नहीं सकते, लेकिन दिस इज हाउ इट हैपेंस। आप अपने इस जन्म में क्या कर सकते हैं, आप उतना एफर्ट करिए। आपको दिख रहा है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आपके अंदर अहंकार आ रहा है, आपको सब कुछ रियलाइज होता है, बट स्टिल वी अगेन रिपीट इट द नेक्स्ट डे। That's where we have to have the control over our senses. So I think कश्मीरी शैविज्म में ना जो शिव सूत्र है उसमें क्रम दिया हुआ है कि कैसे हमें साधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप पात्र हैं कि आपको शक्तिपात मिलेगा, मतलब आप सिर्फ शिव का स्मरण करेंगे और आपको शिव के दर्शन हो जाएंगे। तो दिस इज अ रिवर्स ऑर्डर दैट दे टेल अस कि we all are eligible for the samadhi state from the moment we start looking forward to this मार्ग। जब हम योग मार्ग की तरफ या सिर्फ केवल इच्छा करते हैं शिव दर्शन की, तो हमें दर्शन हो जाते हैं। अगर उस स्टेज में नहीं हमें मिलते हैं, तो then we have to go through the process of yoga and other things. Otherwise, like we all are eligible for Shaktipat. वहाँ जो शब्द आता है वो आता है शक्तिपात। So that actually is a reverse theory. So maybe now we've attained that in our past lives. तो शुरू हम हो सकता है ध्यान से करते हैं, as रजनीश से आज बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ तक पहुँचे पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। मोहित भाई, can we, like, if there are any other queries or कोई discussion हो तो पूछ लीजिए। Thank you everyone for joining. Thank you. Lovely session, guys. Yeah, thank you, Okay, Ritu and this- Saurabh. It was Thank you fantastic, everyone for fantastic. joining. Very, very enlightening. Thank you so much. चलिए। Log out, Saurabh? Yeah, please. जी जी, all right. Take care, everyone. Thanks. Yeah, thank you.